Morning students. So today we are going to do chapter 2. It is chapter the missing ring. So this is the chapter from your textbook, second chapter, the missing ring. So in this story, in this chapter, I'm just giving you the introduction so it is easy to understand for you to relate the story, to understand the story. So the missing ring. So in this story you will find a jewelry shop where a person is working, two person assistant are there and one owner is there. And in that story a person came to the jewelry shop. The person seems very simple, but he had a tie, wear a tie which is very shiny and unique, but the dress is very simple. So he came to the shop. He wants to purchase a ring. So he just look through, go through the all rings, and just he in this case between he the shopkeeper found that one ring is missing. And now after missing the ring, he just called the owner of the shop. They searched for that ring and at last they found the ring. So this is the story. The author Nicholas Bentley. So who is the author? Author means जो पर्सन किसी स्टोरी को लिखता है, दैट इज द ऑथर. तो द ऑथर इज निकोलस Bentley. Nicholas Bentley. So the author Nicholas Bentley worked in an antique jewelry shop. One day when a man came into the shop to buy rings, a beautiful ring was lost. Who was the culprit and how was the mystery of the missing ring solved? Let's read the story and find out. So what is the meaning of culprit? Culprit means a person who is guilty. जिसने कोई गलत काम किया होता है, गुनाह किया होता है, that person is called culprit. So I worked at Reisner's, an antique jewelry shop. It has a long counter where I show myself and sell things. Mr. Reisner sits in a room behind the shop. So ऑथर बोल रहा है, ऑथर कौन है? निकोलस बेंटले कह रहे हैं कि मैं एक ज्वेलरी शॉप में, एंटिक ज्वेलरी शॉप में काम करता हूँ और वहाँ पे एक बड़ा सा काउंटर है जहाँ पे मैं चीज़ों को शो करता हूँ, दिखाता हूँ अपने कस्टमर्स को और सेल करता हूँ थिंग्स. और जो मिस्टर रेगनर्स हैं जो कि शॉप के ओनर हैं, वो रूम में बैठा करते हैं जो कि बिहाइंड द शॉप, शॉप के पीछे की तरफ है. देयर आर ओनली टू असिस्टेंट्स, मिस सुस्काइंड एंड माई सेल्फ. तो वहाँ पे सिर्फ टू असिस्टेंट है, एक तो निकोलस बेंटले और उनके साथ में एक है मिस सुस्काइंड. In the morning, I put some pieces of jewelry in the window and take them out at night. तो जो आपने भी देखा होगा, जैसे ज्वेलरी शॉप होता है वहाँ पे शो किया जाता है, शोकेस लगे रहते हैं. तो शोकेस में जो ज्वेलरी होती है वो मॉर्निंग में जब ओपनिंग होती है शॉप की, उस टाइम पे वो लोग उसे डेकोरेट करते हैं वहाँ पे, और फिर जब नाइट में उसे निकाल देते हैं, हटा देते हैं और उसे एक सेफ में रख देते हैं जहाँ पे ज्वेलरी सेफ रहती है. सेफ मीन्स तिजोरी. One morning I noticed a woman looking into the window of the undertaker's shop outside Reisner's. तो एक सुबह ऑथर ने, निकोलस बेंटले ने यह नोटिस किया, यह देखा कि कोई औरत जो कि बाहर खड़ी है एक अंडरटेकर शॉप. अंडरटेकर शॉप होती है जहाँ पे जब लोग मर जाते हैं तो उनके मरने के बाद में जो काम, बाकी जो सारा काम होता है उसको जलाना, सब कुछ वो अंतिम संस्कार का सामान मिलता है, वो वाली शॉप जो है वहाँ पे खड़ी हुई थी. और वहाँ से विंडो से वो वहाँ से राइजनर शॉप में देख रही थी. देयर वॉज नथिंग इन द विंडो. विंडो में कुछ नहीं था.
एक्सेप्ट 2 ऑन्स, सिवाय 2 कलश के. ऑन्स मीन्स कलश. She had long yellow coat with black squares on it. उन्होंने एक बड़ा सा लंबा कोट पहना हुआ था जो कि येलो कलर का था और उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्क्वायर्स प्रिंट बना हुआ था. She had long yellow hair. Her hair was long and yellow. No hat. She did not wear hat. And shoes with the low heels. And she has wore a shoes with the low heel, means that was not high heel, low heel. I watched her for some time. The author has watched her, that he noticed that a lady was looking inside. Then a man came into residence. और तभी एक आदमी उस शॉप में आ जाता है. His clothes were simple except for a very bright necktie. उसके जो क्लोथ थे, जो पर्सन आया था उसके क्लोथ बहुत ज़्यादा सिंपल थे, बस उसकी जो नेक टाई थी वो बहुत ज़्यादा चमकीली थी, ब्राइट थी. नेक टाई पहने वाली, गले में पहने जाने वाली टाई. ही वॉज अबाउट 35 और वो लगभग कितने ईयर्स के थे? ही वॉज ऑलमोस्ट 35 ईयर्स. ही वॉज च्यूइंग गम एंड ही वॉज च्यूइंग a gum in his mouth. He asked to show some rings and when he came he asked to show some rings. उसने ऑथर से कहा कि कुछ रिंग दिखाओ. He wanted to buy. I brought out 3 trays of ring. He picked up 2 or 3 and asked the price. और फिर जैसे आप ज्वेलरी शॉप में गए होंगे तो आपने भी देखा होगा ज्वेलरी जो होती है वो एक ट्रे में रखी रहती है. तो उन्होंने भी इसको 2 और 3 ट्रेस को दिखाया और उस पर्सन ने उस ट्रे में से 2 या 3 रिंग्स उठाकर उनके प्राइस पूछा था. आई नोटिस्ड ही वॉज लेफ्ट हैंडेड. और उसने ये चीज नोटिस की कि वो जो पर्सन है वो लेफ्ट हैंड से काम कर रहा था, वो लेफ्ट हैंड से चीजें उठा के देख रहा था. देयर वॉज वन वेरी ब्यूटिफुल रिंग विद डायमंड्स एंड रूबीज सेट इन अ शेप ऑफ अ फ्लावर. और वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी अंगूठी थी, एक सुंदर सी रिंग थी जो कि फ्लावर शेप में थी और डायमंड और रूबी से सजी हुई थी. The man seemed to think the price was too high. तो उस पर्सन को लगा कि उस चीज की प्राइस, उस रिंग की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगी. Then he saw the 4th tray. और फिर उसने रैक में 4th tray को देखा. It was in a safe in which all the jewelry is locked up. At night I turned to get it out, but before I put it on the counter I noticed that the diamond and ruby flower ring had gone. तो जैसे ही उन्होंने उस 4th ट्रे को निकालने के लिए पीछे मुड़े तो ऑथर ने देखा, जब वो टर्न बैक किए, कि वहाँ पे जो रूबी का और डायमंड का जो फ्लावर रिंग था वो मिसिंग था, वो कहीं चला गया था. तो इस तरह से आपको इसको रीड करना है एंड अंडरलाइन करना है डिफिकल्ट स्पेलिंग्स. टुमारो वी विल कंटिन्यू इट.